Good morning, dear students of BA second semester. I am Satpal Verma here from Department of English, Government National College Sirsa. And today we are going to have an introduction of the chapter with the photographer written by Stephen Leacock. आज इस चैप्टर की आपको अबाउट द ऑथर और अबाउट द स्टोरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द ऑथर स्टार्ट करते हैं। Dear students, there is no question asked as far as author is concerned. जहाँ तक ऑथर का संबंध है इस पर कोई भी क्वेश्चन जनरली डायरेक्ट नहीं पूछा जाता अबाउट इज लाइफ, अबाउट इज वर्क्स। ये जस्ट हम वी आर रीडिंग दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन। वी मस्ट नो समथिंग अबाउट द ऑथर। इसलिए आप देख रहे हो कि आपकी दीपक गाइड में से लिया गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास 99% के पास दीपक गाइड है ताकि आप समझ सकें। सो लेट्स रीड अबाउट स्टीफन लीकॉक। स्टीफन लीकॉक वाज बोर्न इन 1896. He was born in 1896. Stephen Butler Leacock. It is his full name. Stephen Butler Leacock was a Canadian professor of economics. He was a Canadian professor of economics. Dear students, basically he was born in England, but he immigrated to England with his parents when he was at the age of 6 only. Keep in mind. And he was a professor of economics. क्योंकि सारा बाद में इसका पालन पोषण कैनेडियन एजुकेशन ली, इसीलिए इसको कैनेडियन प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ही वॉज ए डिलाइटफुल ह्यूमरस राइटर। ही वॉज ए ह्यूमरस राइटर। ह्यूमर मीन्स हास्य लेखक था। वेरी डिलाइटफुल, बड़ा आनंददायक। ही रोट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। उसने ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं पर ही हैज़ रिटन सो मैनी बुक्स। हिज स्टाइल वॉज सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। His style was very simple, very interesting. He had written a number of novels and short stories. उसने काफ़ी short stories और एक मिनट बच्चों। So he has written so many novels and stories, and his famous compositions include, उसके जो famous थे वो थे nonsense novels, Sunshine Sketches of a Little Town, and fringed fiction. He is best known for his humorous work Laugh with Leacock, which provides delectable reading. His famous book is Laugh with Leacock, which made him very famous, and it's a very delectable means very enjoyable, very tasty reading. Stephen Butler Leacock died in 1944. So dear students, it is clear that he was basically an English, means he was born in England, emigrated to Canada when he was of the age of 6, and most of his education was from Canadian colleges, that is Upper Canada College, and he got a BA degree from University of Toronto, and he has been a professor of economics and political science in 1908 and served until his retirement in 1936. So he was very humorous both as a lecturer, that is as a professor, and as a author. तो इतनी इंट्रोडक्शन आई थिंक काफ़ी रहेगी। नाउ लेट्स रीड अबाउट द स्टोरी। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी। इन दिस स्टोरी द नरेटर डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस विद अ फोटोग्राफर। फोटोग्राफर के साथ उसके एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करता है।
He says that he went to the photographer to have himself photographed. अपनी फ़ोटो करवाने के लिए फोटोग्राफर के पास स्टीफन लिको कहता है कि वो गया। He wanted to give the photograph to his friends. वह उन फोटोग्राफ्स अपने फ्रेंड्स को देना चाहता था, so that ताकि they would remember him after his death, ताकि उसकी मौत के बाद वो उसे याद रखें। But what he got for his photograph, परंतु फोटोग्राफ के बदले उसको क्या मिला, gave him a big shock, उसे बहुत धक्का पहुंचता है, बड़ा आघात पहुंचता है आप कह सकते हो। He didn't at all look like himself in his photograph. Photograph was altogether changed. His face in the photograph did not match with his actual face. His face had all been changed. पूरा face change कर दिया गया था। The eyebrows had been removed. eyebrows को remove कर दिया। Even the mouth had been adjusted. और mouth थोड़ा even the hair from the front part of the skull were gone. और आगे स्कल के हमारे आगे वाले बाल थे वो लगभग चले गए। आईज हैड बिन आईज को चेंज कर दिया। इवन द माउथ हैड बिन माउथ थोड़ा एडजस्ट कर दिया, मतलब सीधा कुछ टेढ़ा होगा उस तरह। एंड व्हेन द नरेटर लुक्ड एट इट, और जब नरेटर ने ऑथर ने देखा, ही एक्सप्लेन्ड, ही तो उसने कहा, एक्सक्लेम्ड, इज इट मी, तो उसने बड़े मतलब हैरानी के साथ कहा, क्या ये मैं हूँ। द फोटोग्राफर स्टार्टेड आर्गुइंग विद द फोटोग्राफ विद द नरेटर। अब नरेटर के साथ जो ऑथर था वो बहस करने लगा। जो वर्णन करता है नरेटर, वर्णनकर्ता को बोलते हैं, उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने। ही सेड दैट ही हैड डन इट टू मेक द फेस लुक लाइक ब्यूटीफुल। कहता मैंने ये इसलिए किया है ताकि आपका फेस ब्यूटीफुल लगे। द नरेटर बर्स्ट इनटू एंगर, उसका गुस्सा फूट पड़ा। ही सेड दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फेस। कहता है मैं मेरे फेस पर प्राउड फील करता हूँ। इट वॉज ए थिंग दैट हैड बीन गिवन टू मी बाय हेवन। हेवन का मतलब स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब भगवान, कि ये मेरा वो चेहरा है जो मुझे भगवान ने दिया है, मुझे गर्व है इस पर। ही आस्क्ड द फोटोग्राफर टू कीप द वर्थलेस बबल विद हिम। वर्थलेस बबल यहाँ बोला है, मुहावरे के रूप में यूज़ किया है, मतलब व्यर्थ की चीज़, कि ये जो यूजलेस थिंग है ये आप खुद रखो। एंड वेंट अवे इन टीयर्स, और आंखों में आंसू लिए वहाँ से निकल लिया। तो इस तरह ये छोटी सी आपकी स्टोरी है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि एक पैसेज आपका पढ़ के देखें हम। टुवर्ड्स द एंड हम कोशिश करते हैं जो आपके प्रिस्क्राइब है, आप क्योंकि आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट तो आता नहीं, फिर भी थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। लास्ट वाला एक थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। लिसन, सुनिए। आई इंटरप्टेड, मैंने टोका। ड्राइंग माई सेल्फ अप, मैंने अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव किया। एनिमेटिंग माई फीचर, मेरे फीचर को थोड़ा एनिमेट मतलब एक्टिव करते हुए। टू देयर फुल एक्सटेंट, जितना मैं अपने मतलब हाव भावों को खींच सकता था खींचा। एंड स्पीकिंग विद द विदरिंग स्कॉर्न, विदरिंग होता है, विदरिंग स्कॉर्न मतलब घृणापूर्ण तरीके से। दैट शुड हैव ब्लास्टेड द मैन ऑन द स्पॉट, इतनी ज़्यादा मतलब घृणापूर्ण तरीके से मैंने बात की कि अगला बंदा ब्लास्ट हो जाए। आई केम हेयर फॉर ए फोटोग्राफ, कहता है मैं एक फ़ोटोग्राफ खिंचवाने के लिए आया था। ए पिक्चर, एक ऐसी फ़ोटो, चित्र। समथिंग विच, जो, ऐसा चित्र जो, विच बैड दो इट सीम्स, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना लगता है, वुड हैव लुकड लाइक मी, कम से कम मेरे जैसा तो दिखाई दे। आई वॉन्टेड समथिंग दैट वुड डिपिक्ट माई फेस एज हेवन गेव इट टू मी, हम्बल दो द गिफ्ट मे हैव बीन। कहता है मैं एक ऐसा चित्र, ऐसी फोटोग्राफ्ड करवाना चाहता था जो मेरे फेस को वैसा ही दिखाए जैसा हेवन ने, भगवान ने मुझे दिया है।
आई वॉन्टेड समथिंग, मैं कुछ ऐसी चीज़ चाहता था, दैट माई फ्रेंड्स माइट कीप आफ्टर माई डेथ, ताकि मेरी मृत्यु के बाद मेरे फ्रेंड्स एक यादगार के तौर पर रख सकें। टू रिकनसाइल देम टू माई लॉस, ताकि मेरी मौत से जो उनको धक्का पहुँचे उसके साथ वो कुछ ना कुछ समझौता कर सकें, मतलब सदमा जो धक्का लगे उसको सहन कर सकें। इट सीम्स दैट आई वॉज मिस्टेकन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ आके गलती कर दी। वट आई वॉन्टेड इज़ नो लॉन्गर डन, मैं जो चाहता था वो तो हुआ ही नहीं। गो ऑन, चलो कोई ना। देन विद माई ब्रूटल वर्क, गो ऑन देन, चलो कहता कोई बात नहीं, आपने बड़ा ब्रूटल, बड़ा जानवरों वाला काम किया है, करते रहो। टेक योर नेगेटिव, और कहता है अपना नेगेटिव लेकर जाओ, अपना नेगेटिव, और वट एवर इट इज़ यू कॉल इट, वट एवर इट इज़ यू कॉल, चाहे आप इसको जो मर्जी नाम दो, वो नेगेटिव दो, मतलब अपना नेगेटिव दे दो। डिप इट इन सल्फाइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, कोहाइड, कहता है ये जो अब कहता है अपना नेगेटिव, या उसे जो तुम कुछ भी लो लेकर उसे, चाहे सल्फाइड में, चाहे ब्रोमाइड में, चाहे ऑक्साइड में, चाहे काउहाइड में, जिसमें मर्जी तुम डुबो इसको, एनीथिंग यू लाइक। रिमूव द आइज, चाहे आइज को हटा दो। करेक्ट द माउथ, चाहे मुंह को सही करो, चाहे एडजस्ट द फेस, चाहे फेस को सेट करो। रीस्टोर द लिप्स, और चाहे आप जो होठ हैं चाहे उनको रीस्टोर करो, मीन्स दोबारा लगा दो। री एनिमेट द नेकटाई, चाहे नेकटाई को दोबारा आप मतलब अच्छी तरह एनिमेट कर दो, एक्टिव बना दो। रिकन्स्ट्रक्ट द वेस्ट कोट, और चाहे आप मेरे कोट को दोबारा बना दो। कोट इट विद एन इंच ऑफ ग्लोस, और कहता है इसके ऊपर 1 इंच पॉलिश लगा दो। शेड इट, इस पर शेड कर दो। इम्बोस इट, इसको मतलब थोड़ा सा इम्बोस एंड गिल्ड इट, मतलब थोड़ी सी चमक वगैरह सी देना, नक्काशी सी करके, और गिल्ड बोलते हैं इसको, थोड़ा सा ब्राइटन कर देना, चमक दे देना, सोने की चमक सी। टिल इवन यू एक्नॉलेज दैट इट इज़ फिनिश्ड, और जब तक करते रहना जब तक कि तुम्हें ये ना लगे कि मेरा काम पूरा हो गया। देन वेन यू हैव डन ऑल दैट, जब ये सारा तुम्हारा काम समाप्त हो जाए, कीप इट फॉर योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स, जब तुम अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए अपने पास रख लेना। दे मे वैल्यू इट, हो सकता है आपके मित्र इसकी कीमत जाने। टू मी इट इज़ बट ए वर्दलेस बबल, मेरे लिए तो एक घटिया चीज़ है, चमकदार चीज़ मात्र है, मतलब घटिया है बट चमकने का मैं क्या करूँ इसका। आई बस्ट इन टू टीयर्स एंड लेफ्ट, कहता है उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वहाँ से चल लिया। अडेप्टेड फ्रॉम बिहाइंड दी बियॉन्ड, ये एक वर्क से उसकी बुक थी, वहाँ से इसको लिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका स्टोरी थी, सेकंड स्टोरी विद द फोटोग्राफर। इसकी आपको थोड़ी समरी भी बता दी मैंने। इंट्रोडक्शन टू ऑथर हो गया, इंट्रोडक्शन टू द स्टोरीज आल्सो। वी हैव आल्सो read one passage from your textbook so that you can acquaint yourself, ताकि आपकी जान पहचान हो थोड़ी स्टोरी से। वैसे तो आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है ही नहीं, मैंने देखा था क्लासेस में, फिर भी चलो कुछ तो हम पढ़े हैं, आपको आइडिया लगा है स्टोरी किसके बारे में है, क्या स्टोरी है। ऑथर इसका एक ही है, नरेटर स्टीफन लेकॉक ही, और एक फोटोग्राफर है। देयर इज़ नो थर्ड कैरेक्टर इन द स्टोरी। और मेन इसका थीम क्या रहेगा, एक तो यही रहेगा कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफिंग, कि जब उसकी फ़ोटोग्राफी हुई तो व्हाट वाज द प्रोसेस, ठीक है ना। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। फिर बनेगा करेक्टर स्केच ऑफ फोटोग्राफर, जो बहुत बार आता है। एंड एक तो दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज़ डिस्कस द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इन द स्टोरी। ये ह्यूमर और फोटोग्राफर का करेक्टर, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, यही रिपीट होते रहे हैं। और जो आपको समरी दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो में जो मैं डिस्कस करूँगा,
वो आपको उसमें दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। हम छोटे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और समरी भी आपको देंगे, उसके बाद वोकैबुलरी एक्सरसाइज भी करेंगे। सो आप इस तरह वीडियो देखते रहिए और अपना कार्य साथ साथ करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।